Hello student. Today in this lecture we are going to learn two important concepts. First we will learn what is borrowed capital and then we will learn what is debenture and its features. So let's start with borrowed capital. See, only own capital is not sufficient to carry on all business activities of a joint stock company. So when you start any company, basically joint stock company, then you need huge amount of capital to complete or to conduct your business activities. And company can raise that capital by using different sources of own capital. But only own capital is not enough or is not sufficient to carry out all business activities, and therefore company also need to raise capital, additional capital, by using sources of borrowed capital. It means company need to use combination of own capital plus borrowed capital. मतलब अगर आप कोई भी जॉइंट स्टॉक कंपनी चला रहे हो तो उसके लिए बहुत ज्यादा कैपिटल लगता है. कैपिटल कंपनी ओन कैपिटल भी यूज करती है, लेकिन कंपनी का एक्टिविटीज इतना ज्यादा होता है कि सिर्फ ओन कैपिटल इस्तेमाल करके वो सारा बिजनेस एक्टिविटीज कंप्लीट करना कंपनी के लिए पॉसिबल नहीं होता. एंड देयरफॉर कंपनी क्या करती है, ओन कैपिटल के साथ बॉरोड कैपिटल का भी इस्तेमाल करती है. म्हणजे दोन्ही प्रकारचे कॅपिटल कंपनीला वापरावे लागतात. ओन कॅपिटल देखील वापरलं जातं, त्याचबरोबर कंपनीला बॉरोड कॅपिटल देखील वापरावं लागतं. A company needs borrowed capital to supplement its own capital. Okay, so company needs own capital as well as needs borrowed capital to conduct or to carry out their all business activities. Capital which is to be returned in specific time period is called as a borrowed capital. So here, what is borrowed capital? Capital which need to be returned within given time period is called as a borrowed capital. मग borrowed capital कोणाला म्हणायचं? जे कॅपिटल कंपनी लोकांकडून घेते, जे पैसे लोकांकडून घेतले जातात, ते पैसे कंपनी त्या लोकांना एका विशिष्ट म्हणजे स्पेसिफिक टाइम पिरियड मध्ये रिटर्न करते, त्या कॅपिटलला म्हटलं जातं बॉरोड कैपिटल. मतलब कंपनी लोगों से पैसा लेती है और लिया हुआ पैसा एक पर्टिकुलर समय के अंदर लोगों को वापिस करना पड़ता है. उस तरह का जो पैसा रहता है, उस तरह का जो कैपिटल रहता है, उसे कहा जाएगा बोरोड कैपिटल. इसके पहले हम लोगों ने देखा था ओन कैपिटल. ओन कैपिटल क्या होता है? वो कंपनी को रिटर्न नहीं करना पड़ता. मतलब एक बार लोगों से पैसा लिया, वो परमानेंटली कंपनी में रहता है. जब तक कंपनी पूरी तरह से बंद नहीं होती, वाइंड्स अप नहीं होती, तब तक कंपनी वो पैसा वापस नहीं करती. ऐसे पैसे को कहा जाता है, ऐसे कैपिटल को कहा जाता है ओन कैपिटल. म्हणजे ओन कैपिटल आपल्याला परत करायची गरज नसते. लेकिन बोरोड कैपिटल क्या करना पड़ेगा? जिन लोगों से आप लोगों ने कैपिटल लिया है, जिन लोगों से पैसा लिया है, उनको वो
वापिस करना पड़ेगा। ऐसे कैपिटल को कहा जाएगा बोरोड कैपिटल। बोरोड का मतलब होता है उधारी। बोरोड का अर्थ का हो तो उधारी। It is not permanent capital. See, borrowed capital need to be returned within specific time period, and therefore borrowed capital is not permanent capital, whereas own capital need not to be returned, and own capital is to be returned only in the case of winding up of the company, and therefore own capital is called as permanent capital, whereas borrowed capital is called as temporary capital. तो जो borrowed capital है उसको permanent capital नहीं कहा जाएगा। वो कौन सा capital है? temporary capital है, क्योंकि borrowed capital का पैसा कुछ specific time period में आपको वापिस करना पड़ता है। Every trading company is entitled to borrow money. So every company have right to borrow money from public, or borrow money from bank, or borrow money from financial institution. म्हणजे जेव्हा जेव्हा कंपनीला वाटेल तेव्हा कंपनी दिलेल्या नियमानुसार लोकांकडून, बँकेकडून किंवा फायनान्शियल इन्स्टिट्यूट कडून पैसे बॉरो करू शकते, म्हणजे उधारीने घेऊ शकते। तो त्यांना दिलेला काय आहे? अधिकार आहे, एक हक्क आहे। However, it is normal practice to have an express provision in the memorandum of association enabling a company to borrow money. And yes, no doubt every company is entitled to borrow money, but generally it is a general practice that they mention that fact or mention that provision in the memorandum of association of the company. हर एक कंपनी को पैसा बोरो करने का अधिकार है, लेकिन जनरल ऐसा प्रैक्टिस होता है कि हमारी कंपनी पैसा बोरो कर सकती है या बोरोड कैपिटल हम रेज कर सकते हैं। इस तरह का प्रोविजन मेमोरंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी में किया जाता है। म्हणजे कंपनीचे दोन इम्पॉर्टंट डॉक्युमेंट असतात, एक असतं आर्टिकल ऑफ असोसिएशन अँड अदर वन इज मेमोरंडम ऑफ असोसिएशन। मग कंपनी काय करते? त्या मेमोरंडम ऑफ असोसिएशन मध्ये असं मेन्शन करते की आमची कंपनी गरज पडेल तेव्हा बॉरोड कॅपिटल रेज करू शकते। Memorandum authorizes company to exercise borrowing power, whereas Article of Association provides as how and by whom these power shall be exercised. तो मेमोरेंडम में क्या किया जाता है? कंपनी को पावर दिया जाता है कि ये कंपनी पैसा बोरो कर सकती है। मतलब पैसा बोरो करने का, पैसा उधार लेने का अधिकार मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में दिया जाता है। दैट इज बोरोइंग पावर इज गिवन थ्रू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। लेकिन कौन पैसा उधार ये पावर इस्तेमाल कर सकता है? किस तरह से हमें पैसा उधार लेना है? दैट इज हाउ एंड बाय हुम दिस पावर शैल बी एक्सरसाइज। That all is mentioned in the article of association. वो किस में दिया जाएगा? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। तो इसमें दो चीजें हैं। मेमोरेंडम में आपको पावर दिया जाता है, आपके कंपनी को पावर दिया जाता है पैसा बोरो करने के लिए। बोरोड कैपिटल रेज करने का पावर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में दिया जाएगा, लेकिन वो पैसा बोरो करने का अधिकार किसी पर्सन को देना पड़ेगा। तो कौन ऐसा पर्सन है जिसको पैसा बोरो करने का अधिकार रहेगा, और बोरो करने का प्रोसीजर क्या रहेगा, टर्म्स क्या रहेंगे, वो किस में दिए जाएंगे? आर्टिकल ऑफ असोसिएशन मध्ये। ओके, सो मेमोरेंडम मध्ये दिलं जातं की आपली कंपनी पैसे बोरो करू शकते, आणि आर्टिकल ऑफ असोसिएशन मध्ये दिलं जातं की कोणत्या व्यक्तीला पैसे बोरो करण्याचा अधिकार असणार आहे आणि तो कोणत्या प्रोसिजर थ्रू ते पैसे बोरो करू शकतो।
The power to borrow money is normally exercised by board of director of the company. Generally, power to borrow money for company is given to the board of directors of the company. It means board of director have right to borrow money for company. मतलब कंपनी के लिए पैसा बोरोड कैपिटल रेज करने का अधिकार किसको दिया जाता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को दिया जाता है. म्हणजे कंपनीमध्ये जर आपल्याला बोरोड कॅपिटल पाहिजे असेल तर तो बोरोड कॅपिटल घेण्याचा अधिकार हा कोणाला दिला जातो? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्सला दिला जातो. इट मीन्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कॅन बोरो मनी or board of director can raise borrowed capital whenever required. A private company may exercise its borrowing power immediately after incorporation. However, public company cannot exercise its borrowing power until it secures certificate of commencement of business. Saying private company can borrow money immediately after getting certificate of incorporation. Incorporation means registration. So after getting certificate of registration, private company can borrow money. But if you are running public limited company, then you require certificate of commencement of business to borrow money. ओके, सो प्राइवेट कंपनी अगर आपकी है तो जैसे ही आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलता है, दैट इज सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिलता है गवर्नमेंट से, वो मिलने के बाद आप पैसा बोरो कर सकते हैं. लेकिन अगर आपका पब्लिक कंपनी है और आपको अगर पैसा बोरो करना है तो आपको कौन सा सर्टिफिकेट पहला मिलना चाहिए? सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस. कमेंसमेंट का मतलब होता है शुरुआत. ओके, तो पब्लिक कंपनी के लिए आपको इनकॉर्पोरेशन होने के बाद सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट भी लेना पड़ेगा और वो लेने के बाद आपको बोरोड कॅपिटल रेज करने का अधिकार मिलता है. इथे लक्षात ठेवून द्या, जर प्रायव्हेट कंपनी असेल तर तुम्हाला जर पैसे बोरो करायचे असतील तर तुम्हाला लागणार आहे सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन म्हणजे सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन. आणि जर तुमची पब्लिक कंपनी असेल तर तुम्हाला पैसे बोरो करायचे असतील तर तुमच्याकडे कोणतं सर्टिफिकेट असलं पाहिजे? सर्टिफिकेट ऑफ कमेन्समेंट ऑफ बिझनेस. ते सर्टिफिकेट मिळाल्यानंतरच पब्लिक कंपनी पैसे बोरो करू शकते. The capital may be borrowed for short, medium or long term requirement. So you can borrow capital for short term or for medium term or for long term as per your requirement. It is better to raise borrowed capital at a later stage of company's business when company want to expand or diversify its business and it requires additional capital. Generally, at initial stage, company raise capital by using sources of own capital, that is by using equity shares. And generally, joint stock company raise borrowed capital on later stage when company decides or company plan to make expansion of the business or to make diversification of the business or to make modernization of the business. म्हणजे जनरली काय केलं जातं, सुरुवातीला बॉरोड कॅपिटल कंपनी कधी घेत नाही. म्हणजे जेव्हा कंपनी लगेच स्टार्ट होते तेव्हा जनरली बॉरोड कॅपिटल रेज केलं जात नाही किंवा बॉरोड कॅपिटल पैसे रेज केले जात नाही. करू शकते पण जनरली केलं जात नाही. तेव्हा ओन कॅपिटलचा वापर केला जातो. मग बॉरोड कॅपिटल हे नंतर घेतलं जातं. नंतर म्हणजे कधी? जर कंपनीला एक्सपांड करायचं असेल. एक्सपांड म्हणजे बिझनेस वाढवणे. कंपनी वॉन्ट टू मेक डायव्हर्सिफिकेशन. डायव्हर्सिफिकेशन म्हणजे वेगळ्या प्रकारचा बिझनेस चालू करणे. म्हणजे आता जर तुम्ही मोबाईल बनवत असताल आणि तुम्हाला आता टेलिव्हिजन बनवायचं आहे, त्याला म्हटलं जाईल डायव्हर्सिफिकेशन.
मग अशा प्रकारे जर तुम्हाला डायव्हर्सिफिकेशन करायचं असेल तर तुम्हाला कॅपिटल लागणार आहे, मग त्यावेळी तुम्ही बॉरोड कॅपिटल थ्रू पैसे रेज करू शकता. ओके, तो जनरली इनिशियल स्टेज में ओन कैपिटल इस्तेमाल किया जाता है और लेटर स्टेज में जब अगर कंपनी को एक्सपांशन करना है, डाइवर्सिफिकेशन करना है, ऐसे समय में बोरोड कैपिटल का इस्तेमाल किया जाता है. This additional capital can be raised by issue of debenture, accepting deposits, bonds, loan from commercial banks and financial institutions. See, there are different sources to raise borrowed capital. What are the sources? Issue of debentures. आप डिबेंचर इशू करके borrowed capital रेज कर सकते हैं. Accepting deposits from public. लोकांकडून आपण डिपॉझिट घेऊ शकतो आणि त्याच्या थ्रू आपण borrowed capital रेज करू शकतो. Issuing bonds to the public. Bonds are generally used by government companies. Loan from commercial banks and financial institution. आप बैंक से कर्जा ले सकते हो या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वहां से भी कर्जा लेके आपको जो बोरोड कैपिटल की जरूरत है वो आप कंप्लीट कर सकते हैं. इंटरेस्ट इज पेड ऑन बोरोड कैपिटल. रिमेंबर, ऑन ओन कैपिटल दैट इज ऑन शेयर्स कंपनी नीड टू पे डिविडेंड that is written on investment in shares. But when you raise borrowed capital, you need to pay interest on that borrowed capital. मतलब जब आप अगर किसी बैंक से कर्जा लेते हो तो उस कर्जे के बदले बैंक आपसे जो भी इनकम लेने वाली है रिटर्न में उसे कहा जाएगा इंटरेस्ट. अगर आप डिबेंचर इशू करते हैं तो जिन जिन लोगों ने डिबेंचर लिया है मतलब डिबेंचर होल्डर, उसको आप रिटर्न में कुछ तो भी दोगे. जैसे शेयर होल्डर को डिविडेंड दिया जाता है वैसे ही डिबेंचर होल्डर को रिटर्न में कुछ देना पड़ेगा और उसे भी कहा जाएगा इंटरेस्ट. तो बोरोड कैपिटल के रिटर्न में कंपनी जो इन्वेस्टर को देती है उसे कहा जाएगा इंटरेस्ट. इट इज पेड एट अ फिक्स रेट एंड इंटरेस्ट इज जनरली और ऑलवेज गिवन ॲट अ फिक्स रेट. आणि जो इंटरेस्ट दिला जातो बॉरोड कॅपिटल वर तो कसा असतो? फिक्स असतो. बॉरोड कॅपिटल इज रिपेएबल आफ्टर स्पेसिफिक पिरियड ऑफ टाइम अँड ऑल काइंड्स ऑफ बॉरोड कॅपिटल इज टू बी रिपेड आफ्टर स्पेसिफिक टाइम पिरियड. म्हणजे जे काही आपण बॉरोड कॅपिटल लोकांकडून घेतो, बँकेकडून घेतो, ते त्यांना एका स्पेसिफिक टाइम पिरियड मध्ये रिटर्न करावं लागतं. And that type of capital is called as a borrowed capital. Remember, borrowed capital is not permanent capital, but it is temporary capital. Next is debenture. Debenture are one of the principal sources of raising borrowed capital to meet long and medium-term financial needs. Remember, debenture is one of the principal source. Principal source means important source of raising borrowed capital. And by issuing debenture, you can raise long-term borrowed capital or you can raise medium-term borrowed capital. Debenture हा एक असा सोर्स आहे की त्याचा वापर करून म्हणजे डिबेंचर पब्लिकला इश्यू करून जसं आपण शेअर्स इश्यू करून पैसे जमा करतो तसंच डिबेंचर इश्यू करून देखील आपण लॉंग टर्म आणि मीडियम टर्म काळासाठी तेवढ्या पिरियडसाठी लॉंग टर्म आणि मीडियम टर्म म्हणजे 10 इयर्स 15 इयर्स 20 इयर्स हे झालं मीडियम टर्म म्हणजे 10 इयर्स और 5 इयर्स 10 इयर्स त्याला म्हटलं जाईल मीडियम टर्म आणि लॉंग टर्म म्हणजे 20 इयर्स 25 इयर्स म्हणजे काय झालं लॉंग टर्म. अशा जास्त काळासाठी जर आपल्याला पैसे पाहिजे असतील तर डिबेंचर इश्यू करून आपण बॉरोड कॅपिटल काय करू शकतो रेज करू शकतो. सो डिबेंचर एक इम्पॉर्टेंट सोर्स रहेगा
बोरोड कैपिटल रेज करने का, और डिबेंचर का इस्तेमाल करके हम लॉन्ग टर्म कैपिटल रेज कर सकते हैं या मीडियम टर्म कैपिटल रेज कर सकते हैं। Over the years, debentures have occupied a significant position in the financial structure of the company. मतलब सालों साल डिबेंचर्स एक ऐसा इंपॉर्टेंट सोर्स है कि जो हर एक कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर में पाया जाता है। मतलब ज्यादातर कंपनी बोरोड कैपिटल के लिए डिबेंचर का इस्तेमाल करते हैं। म्हणजे जास्तीत जास्त कंपन्या त्यांचं जर कॅपिटल स्ट्रक्चर आपण बघितलं तर त्याच्यामध्ये आपल्याला डिबेंचर दिसतं। म्हणजे जास्तीत जास्त कंपन्या बोरोड कॅपिटल रेज करण्यासाठी डिबेंचरचा वापर करत असतात। The term debenture has come from the Latin word debere, which means to owe. See, the word debenture has come from the Latin word debere, which means to owe. The term debenture has not been defined clearly under Companies Act. मतलब डिबेंचर का डायरेक्टली डेफिनेशन कंपनी एक्ट में दिया नहीं है। Under the existing definition, debenture includes debenture stocks. Debenture means a document which either creates or acknowledges debts. Debenture means nothing but one document, and that document creates or acknowledges debt. मतलब डिबेंचर एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो डेप्ट क्रिएट करता है या एक्नॉलेज करता है कि हम लोगों ने लोगों से पैसा लिया है। एक्नॉलेज करना मतलब क्या करना? एक्सेप्ट करना। तो कंपनी उस डॉक्यूमेंट के थ्रू एक्सेप्ट करती है, मान लेती है, एक्नॉलेज करती है कि हम लोगों ने ऐसे ऐसे लोगों से इतना पैसा लिया है। डेप्ट मतलब कर्जा। Ordinarily, debenture constitute a charge on some property of company, but there may be debenture without any such charge. Generally, debenture constitutes charge that debentures called as a secured debenture. म्हणजे जनरली जे डिबेंचर इश्यू केले जातात ते इश्यू करताना कोणते तरी कंपनीचे जे असेट्स असतात त्याच्यावर चार्ज क्रिएट केला जातो। पण सर्वच डिबेंचरवर चार्ज क्रिएट केला जाईल असं नाही। काही जे डिबेंचर असतात ते विदाउट चार्ज देखील इश्यू केले जाऊ शकतात, त्याला म्हटलं जातं अनसिक्योर्ड डिबेंचर। तो कुछ डिबेंचर ऐसे रहेंगे जो विदाउट चार्ज ऑन असेट दिए जा सकते हैं, और कुछ डिबेंचर ऐसे रहते हैं कि जो इश्यू करते समय कंपनी का जो असेट है, कंपनी का जो प्रॉपर्टी है, उसके ऊपर चार्ज क्रिएट किया जाता है। See the various definition of debentures. Palmer defines a debenture as an instrument under seal evidencing debt, the essence of it being admission of indebtedness. Here it means debenture is an instrument. Debenture is an one instrument under seal. Seal means stamp of the company. Evidencing debt. Evidencing means proving, and debt means loan. The essence of it being admission of indebtedness. पाल्मर कहता है कि डिबेंचर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके ऊपर कंपनी का स्टैंप रहेगा, और ये ऐसा प्रूव करेगा कि जिस पर्सन का नाम उस डॉक्यूमेंट के ऊपर लिखा गया है उस पर्सन से कंपनी ने क्या लिया है? कर्जा लिया है। तो ये ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके थ्रू कंपनी एक्नॉलेज करती है, कंपनी एक्सेप्ट करती है कि हम लोगों ने इस डॉक्यूमेंट के ऊपर जिसका नाम लिखा है उस पर्सन से हम लोगों ने कर्जा लिया है, और उसे ही कहा जाएगा डिबेंचर। Topham defines a debenture is a document given by a company as evidence of debt to the holder, usually arising out of loan and most commonly secured by charge. Topham defines that debenture is a
डॉक्यूमेंट गिवन बाय कंपनी एज अ एविडेंस। तो अपन कहता है डिबेंचर एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कंपनी डिबेंचर होल्डर को देती है। डिबेंचर होल्डर मतलब जिस पर्सन ने कंपनी के डिबेंचर क्या किए है, परचेस, और उस पर्सन को कंपनी क्या करती है, एक डॉक्यूमेंट देती है। और डॉक्यूमेंट क्या रहता है, एविडेंस रहता है, प्रूफ रहता है। किसका प्रूफ रहता है, कि कंपनी ने उस पर्सन से कर्जा लिया है। और जनरली वो कर्जा क्या रहता है, सिक्योर्ड रहता है, सिक्योर्ड बाय चार्ज। सिक्योर्ड मतलब क्या होता है, कि अगर कंपनी 5 लाख के डिबेंचर इशू करती है तो कंपनी को 5 लाख के जो असेट्स है वो उनके लिए ट्रस्ट के थ्रू एक ट्रस्ट डीड बनाया जाता है, एग्रीमेंट बनाया जाता है, उसके थ्रू गिरवी रखे जाएंगे। और अगर कंपनी ने डिबेंचर होल्डर का पैसा नहीं दिया तो डिबेंचर होल्डर वो सारे असेट बेच के अपना पैसा वसूल कर सकते, उसे कहा जाएगा सिक्योर्ड बाय चार्ज। वो हम लोग वो डिटेल में देखने वाले हैं। म्हणजे डिबेंचर हे एक असं डॉक्युमेंट आहे की ज्याच्यावर कंपनीचा स्टॅम्प असतो आणि ते डॉक्युमेंट प्रूव्ह करतं की ज्या व्यक्तीचं नाव ह्या डॉक्युमेंट मध्ये लिहिलेलं आहे त्या व्यक्तीकडून कंपनीने कर्ज घेतलेलं आहे, लोन घेतलेलं आहे। आणि जनरली ते जे लोन असतं, डिबेंचर्स असतं, ते सिक्युअर्ड असतं, म्हणजे त्याच्या अगेन्स्ट काही जे कंपनीच्या असेट्स असतात त्या मॉर्गेज ठेवल्या जातात, एक एग्रीमेंट तयार करून त्याला म्हटलं जातं ट्रस्ट डीड। ते आपण डिटेल मध्ये पुढे बघणार आहोत। अकॉर्डिंग टू द अबाउट डेफिनेशन, डिबेंचर इज an evidence of indebtedness. It is an instrument issued in the form of debenture certificate under the common seal of the company. So, on the basis of about definition, we can conclude that debenture is an document issued by company under its common seal and it is a evidence of debt. It is a evidence of debt. तो हम ऐसा बोल सकते हैं डिबेंचर एक ऐसा डॉक्यूमेंट रहता है जिसके ऊपर कंपनी का स्टैंप रहेगा, कंपनी का सील रहेगा और उसके थ्रू कंपनी एक्नॉलेज करती है, कंपनी एक्सेप्ट करती है कि कंपनी ने जिस पर्सन का नाम डॉक्यूमेंट पे लिखा है उस पर्सन से क्या लिया है, कर्जा लिया है। So when you purchase debenture of any company, then company issues one certificate as evidence, as a proof that you have purchased debentures of that company, and that certificate is called as debenture certificate. म्हणजे जेव्हा तुम्ही एखाद्या कंपनीचे डिबेंचर परचेस करता तेव्हा कंपनी तुम्हाला एक डॉक्युमेंट इश्यू करते, एक सर्टिफिकेट देते आणि ते सर्टिफिकेट काय असतं, एव्हिडन्स असतं, प्रूफ असतं की तुम्ही त्या कंपनीचे डिबेंचर काय केलेले आहेत, परचेस केलेले आहेत। सिमिलर लाइक अ शेयर सर्टिफिकेट, जैसे शेयर सर्टिफिकेट आपको इशू किया जाता है जब आप किसी कंपनी के शेयर परचेस करते हैं, वैसे ही अगर आप किसी कंपनी का डिबेंचर परचेस करते हो तो कंपनी आपको एक सर्टिफिकेट देती है एज अ एविडेंस, एज अ प्रूफ। वो आपके पास प्रूफ रहेगा कि आप लोगों ने ऐसे कंपनी के इतने इतने डिबेंचर परचेस किए हैं। Here is one sample of debenture certificate. Here name and company name and address, Reliance, and here is type of debenture with interest rate on debenture. See, 16% secured, optionally fully convertible debenture of ₹50 each. Here 50 each, 50 is a face value of debenture, and here type of debenture, debentures are secured, and here 16%, 16% is nothing but rate of interest on that debenture. म्हणजे इथे जे डिबेंचर आपण परचेस केले त्याच्यावर आपल्याला 16% काय मिळणार आहे, इंटरेस्ट मिळणार आहे। आणि हे डिबेंचर कसे आहेत, सिक्युअर्ड,
and not only secured, fully convertible डिबेंचर। डिबेंचर के अलग अलग टाइप है, कन्वर्टिबल डिबेंचर, नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर। तो ये कौन से है? फुल्ली कन्वर्टिबल डिबेंचर है, सिक्योर डिबेंचर है। इसका फेस वैल्यू कितना दिया है? 50 दिया है और 16% क्या दिया है? इंटरेस्ट। हियर इज अ सर्टिफिकेट नंबर, हियर इज नेम ऑफ डिबेंचर होल्डर। जनरली नेम एंड एड्रेस ऑफ डिबेंचर होल्डर इज गिवन हियर। म्हणजे जो व्यक्ती डिबेंचर परचेस करतो त्याचं नाव आणि ऍड्रेस या ठिकाणी दिलं जातं। अँड हियर डिस्टिंक्टिव्ह नंबर ऑफ डिबेंचर्स यू हैव परचेस। जैसे आप अगर शेयर परचेस करते हैं तो हम लोगों ने देखा है कि शेयर्स को भी एक डिस्टिंक्टिव यूनिक नंबर्स दिए जाते हैं, सीरियल नंबर दिए जाते हैं। उसी तरह से डिबेंचर के भी यूनिक सीरियल नंबर रहते हैं और वो आपको यहाँ पे दिए जाते हैं। यहाँ पे डेट रहेगा, यहाँ पे सिग्नेचर रहेगा, सेक्रेटरी का सिग्नेचर, सिग्नेचर ऑफ डायरेक्टर, सिग्नेचर ऑफ चेयरमैन, वो सब यहाँ पे डिटेल्स रहेंगे। तो जैसे आपका शेयर सर्टिफिकेट रहता है वैसे ही डिबेंचर सर्टिफिकेट रहेगा। तो एक प्रूफ रहेगा और इस डॉक्यूमेंट के थ्रू इस कंपनी ने, मतलब जो रिलायंस कंपनी है, उन्होंने एक्नॉलेज किया कि हमें इस पर्सन से कितना पैसा मिला है, कितना पैसा मिला है, वो इस डॉक्यूमेंट के थ्रू कंपनी ने क्या किया है? एक्नॉलेज किया है, एक्सेप्ट किया है। नेक्स्ट इज फीचर्स ऑफ डिबेंचर। फर्स्ट, प्रॉमिस। डिबेंचर इज अ प्रॉमिस। डिबेंचर इज अ नथिंग बट प्रॉमिस। प्रॉमिस मीन्स कमिटमेंट, वादा by company that it owes। डिबेंचर इज अ प्रॉमिस बाय अ कंपनी। डिबेंचर एक क्या है? एक प्रॉमिस है, एक कमिटमेंट है। कौन करता है? कंपनी करता है। दैट इट ओज, ओज मीन्स ऑब्लिगल टू पे, रीपेमेंट ऑफ मनी, पैसा वापिस करने का, पैसा वापिस करने का प्रॉमिस, पैसे परत देण्याचं प्रॉमिस। स्पेसिफाइड सम ऑफ मनी टू होल्डर ऑफ द डिबेंचर। सो डिबेंचर मतलब एक प्रॉमिस रहता है, एक कमिटमेंट रहता है। और एक कमिटमेंट कौन करता है? कंपनी करता है। किसको कमिटमेंट करता है? डिबेंचर होल्डर को। डिबेंचर होल्डर मतलब ऐसे लोग जो लोग कंपनी के डिबेंचर परचेस करते हैं। तो डिबेंचर होल्डर को किया गया प्रॉमिस मतलब ही डिबेंचर। और ये प्रॉमिस कौन करता है? कंपनी। क्या प्रॉमिस करता है? कि आप लोगों का जो भी पैसा डिबेंचर सर्टिफिकेट में लिखा गया है वो पैसा हम पर्टिकुलर और स्पेसिफिक टाइम पीरियड में क्या करेंगे? वापिस करेंगे। और इसीलिए तो हम बोलते हैं कि डिबेंचर से जो पैसा लिया जाता है वो बोरोड कैपिटल है, क्योंकि डिबेंचर होल्डर का पैसा स्पेसिफिक टाइम पीरियड में क्या किया जाता है? वापिस। डिबेंचर इश्यू करून जे काही पैसे आपण जमा करतो त्याला आपण काय म्हणतो? बोरोड कॅपिटल। बोरोड का? कारण की डिबेंचर होल्डरला ते पैसे काय करावे लागतात? परत करावे लागतात। कंपनी त्याचे पैसे स्पेसिफिक टाइम पिरियड मध्ये परत करते आणि त्या प्रकारचं जे प्रॉमिस असतं त्याला काय म्हटलं जातं? डिबेंचर। सो डिबेंचर इज वन प्रॉमिस, डिबेंचर इज वन कमिटमेंट made by company to debenture holder regarding repayment of money, repayment of capital within specific time period. Second, face value. The face value of debenture normally carries high denomination. It is 100 or in multiple of 100. Generally, the face value of debenture is high. That will be 100 or in multiple of 100. म्हणजे डिबेंचरची जी फेस व्हॅल्यू असते ती जनरली जास्त असते, जनरली जास्त असते, पण तसा काही रूल नाही की किती असली पाहिजे, पण जनरली जास्त असते। जनरली ती 100 ठेवली जाते, आता करंटली ती 100 ठेवली जाते, किंवा मल्टिपल इन 100 म्हणजे 100, 200, 300 अशा प्रकारे त्याची व्हॅल्यू असू शकते। तो डिबेंचर का फेस वैल्यू ज्यादा रहता है एज कंपेयर टू शेयर्स, और इसका जो फेस वैल्यू रहता है वो ज्यादातर 100 रहता है
और 100 के मल्टीपल में हो सकता है, मतलब 100, 200, 300 इस तरह से। टाइम ऑफ रीपेमेंट। Debentures are issued with the due date stated in the debenture certificate. The principal amount of debenture is repaid on maturity date. Time of repayment. All debentures are to be repaid as per time period given in certificate, debenture certificate. सभी के सभी डिबेंचर आपको रिपेड करने पड़ते हैं, मतलब डिबेंचर होल्डर का पैसा आपको वापस करना पड़ता है। कौन से समय में वापस करना है? जितना भी टाइम पीरियड आप लोगों ने डिबेंचर सर्टिफिकेट में मेंशन किया है, और मैच्योरिटी पीरियड पर आपको उनका पूरा का पूरा पैसा वापस करना पड़ता है। मतलब क्या? फॉर एग्जाम्पल, कंपनी ने 50,000 के डिबेंचर बेचे 10 साल के लिए, तो कंपनी क्या करेगी, 10 साल तक उन डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट देती रहेगी, और जैसे ही 10 साल कंप्लीट होगी, पूरा का पूरा 50,000 उनको वापस किया जाता है। मतलब 10 साल तक हर साल उसको इंटरेस्ट मिला, और 10 साल कंप्लीट होने के बाद, मतलब मैच्योरिटी होने के बाद, उनका 50,000 क्या कर दिया, वापस। तो हर एक डिबेंचर का एक टाइम पिरियड रहता है रिपेमेंट का, म्हणजे प्रत्येक डिबेंचरचं एक टाइम असतं रिपेमेंटचं, म्हणजे प्रत्येक डिबेंचरचे पैसे आपल्याला स्पेसिफिक टाइम पिरियड नंतर परत करावे लागतात. Priority of repayment. Debenture holder have a priority in repayment of debenture capital over the other claimants of company. Other claimants including equity and preference shareholder. So, debenture holder have priority in the case of payment of capital, repayment of capital, and in the case of getting interest. They have priority over equity shareholder and preference shareholder. म्हणजे काय? इक्विटी शेअर होल्डरला पैसे देण्याच्या आधी आणि प्रिफरन्स शेअर होल्डरला पैसे देण्याआधी कंपनीला कोणाचे पैसे द्यावे लागतात? डिबेंचर होल्डरचे पैसे द्यावे लागतात. ओके, तो इसका मतलब है डिबेंचर होल्डर को रीपेमेंट के समय प्रायोरिटी रहती है. मतलब अगर कंपनी समझो वाइंड्स अप हो गई, कंपनी परमानेंटली बंद हुई, तो पहले कैपिटल किसका वापस करना पड़ेगा? डिबेंचर होल्डर का, उसके बाद प्रीफरेंस शेयर होल्डर का, और उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर का. मतलब कैपिटल रीपेमेंट करते समय इक्विटी शेयर होल्डर और प्रीफरेंस शेयर होल्डर, इनके पहले किसका प्रायोरिटी आएगा? डिबेंचर होल्डर का प्रायोरिटी रहेगा. अश्योरेंस ऑफ रीपेमेंट. डिबेंचर कंस्टिट्यूट अ लॉन्ग टर्म डेट. दे कॅरी एन अश्योरेंस ऑफ रीपेमेंट ऑन ड्यू डेट. अश्योरेंस मीन्स गॅरंटी. म्हणजे डिबेंचर मध्ये काय असतं? गॅरंटी असते. ते लॉंग टर्म असतात, पण त्याच्यामध्ये रीपेमेंटची काय असते? गॅरंटी दिलेली असते की तुमचं जे स्पेसिफिक टाइम पिरियड दिलेला आहे, त्या टाइम पिरियड नंतर तुमचे सर्वच्या सर्व पैसे रिपेड केले जातील, रीपेमेंट केले जातील, परत केले जातील. तो डिबेंचर में एक अश्योरेंस रहता है, अश्योरेंस ऑफ रीपेमेंट रहता है. अश्योरेंस मतलब गारंटी रहती है कि आपका जितना भी पैसा है वो स्पेसिफिक टाइम पीरियड में या स्पेसिफिक टाइम पीरियड कंप्लीट होने के बाद आपका पूरा का पूरा पैसा वापस किया जाएगा. अश्योरेंस मतलब गारंटी. इंटरेस्ट. A fixed rate of interest is agreed upon and is paid periodically in case of debenture. So, on debentures, company need to pay interest, and interest is paid at a fixed rate. म्हणजे जेव्हा कंपनी लोकांकडनं डिबेंचरचे पैसे घेते, म्हणजे लोकांना डिबेंचर विकते आणि डिबेंचरचे पैसे घेते, तेव्हा ज्या लोकांकडनं पैसे घेतलेले आहेत, म्हणजे डिबेंचर होल्डर, त्या डिबेंचर होल्डरला रिटर्न मध्ये काय दिलं जातं? इंटरेस्ट दिलं जातं. शेअर्सवर काय रिटर्न मध्ये दिलं जातं? तर शेअर्सवर जे रिटर्न दिलं जातं त्याला म्हटलं जातं डिव्हिडंड, आणि डिबेंचरवर जे रिटर्न दिलं जातं त्याला म्हटलं जातं इंटरेस्ट. and interest is to be paid at a fixed rate. म्हणजे इंटरेस्ट कसं पेड केलं जातं? फिक्स रेटने पेड केलं जातं. तो याद रखना है, शेयर्स के ऊपर डिविडेंड दिया जाता है और डिबेंचर के ऊपर क्या दिया जाता है? इंटरेस्ट. और इंटरेस्ट कैसे रहता है? फिक्स रहता है. मतलब प्रॉफिट चाहे कितना भी हो, कम हो या
ज्यादा हो, आपको जितना भी तय किया है उतना इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट इज अ फिक्स लायबिलिटी ऑफ द कंपनी, और एक फिक्स लायबिलिटी है, क्योंकि चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, आपको जितना इंटरेस्ट बोला गया है डिबेंचर होल्डर को, उतना इंटरेस्ट आपको देना ही पड़ेगा। It must be paid by company irrespective of the fact whether the company makes profit or not. It means company has to pay that interest at any cost. That doesn't matter either there is profit to the company or loss to the company. म्हणजे कंपनीला प्रॉफिट झालाय, कंपनीला लॉस झालाय, त्याचा काही संबंध येत नाही. तुम्हाला जो फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट सांगितलेला आहे, फॉर एक्झाम्पल 16%, मग तुम्हाला तो 16% इंटरेस्ट कोणत्याही परिस्थितीमध्ये द्यावाच लागणार आहे, तो रेग्युलरली द्यावा लागणार आहे. ओके, तो यहाँ पे याद रखना है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज गिवन एट अ फिक्स रेट इरिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट और लॉस अर्न बाय द कंपनी. कंपनी को प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ उससे कुछ भी मतलब नहीं, जितना भी डिसाइड किया है उतना डिबेंचर का इंटरेस्ट आपको हर साल देना ही पड़ेगा. नेक्स्ट इज parties to debentures. There are three parties related to debenture. First is company, second trustees, and third debenture holders. Company, this is the entity which borrows money. Company means this is the entity, this is an institution which borrows the money from public. म्हणजे ही अशी इन्स्टिट्यूशन असते, अशी संस्था असते जी लोकांकडून काय करते, पैसे बोरो करते. त्यांना पैशाची गरज असते, तो लोगों से पैसा बोरो करने का काम कौन करता है, कंपनी करता है. तो कंपनी एक पहला पार्टी है, इंपॉर्टेंट पार्टी है. सेकंड पार्टी इज ट्रस्टीज. A company has to appoint debenture trustees if it is offering debentures to more than 500 people. तो अगर कंपनी 500 से ज्यादा लोगों को डिबेंचर इशू करती है या इशू करने की सोचती है, तो कंपनी को क्या करना पड़ेगा, कंपनी को डिबेंचर ट्रस्टीज को अपॉइंट करना पड़ेगा. म्हणजे 500 पेक्षा जर जास्त लोकांना डिबेंचर इशू करायचे असतील तर कंपनीला डिबेंचर ट्रस्टीज काय करावे लागतात, अपॉइंट करावे लागतात. दिस इज द पार्टी थ्रू whom the company deals with debenture holder. So debenture trustees is a middleman, like a work as a middleman, and company deals with debenture holder through debenture trustees. मतलब डिबेंचर होल्डर के साथ जो भी डीलिंग किया जाता है, जो भी ट्रांजैक्शन किया जाता है, उन दोनों के बीच में कौन रहता है, डिबेंचर ट्रस्टीज रहती है. तो डिबेंचर ट्रस्टीज एक ऐसी पार्टी है, उसके थ्रू कंपनी डिबेंचर होल्डर के साथ डीलिंग करती है. म्हणजे डिबेंचर होल्डर बरोबर जे काही डीलिंग केलं जातं, त्या डीलिंग करण्यामध्ये कोण मदत करत असतं, डिबेंचर ट्रस्टीज मदत करत असतं. The company makes an agreement with trustees. It is known as a trust deed. So company make one agreement with debenture trustees and that agreement is called as a trust deed. Deed मतलब agreement. म्हणजे कंपनी त्या डिबेंचर ट्रस्टीज बरोबर एक एग्रीमेंट तयार करते आणि त्या एग्रीमेंटला म्हटलं जातं ट्रस्ट डीड. It contains the obligation of company, rights of debenture holder, powers of trustees, etc. And that trust deed, that trust agreement includes obligation of company. मतलब कंपनी के ऊपर क्या क्या ऑब्लिगेशंस रहेंगे, लायबिलिटीज क्या रहेगी, वो उसमें मेंशन किया जाता है. राइट्स ऑफ डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर होल्डर के अधिकार क्या क्या रहेंगे वो उसमें मेंशन किया जाएगा. पावर्स ऑफ ट्रस्टीज, ट्रस्टीज के क्या पावर्स रहेंगे वो उसमें रहेगा. और इसमें रहता है चार्ज ऑन असेट इन केस ऑफ कंपनी गोइंग टू इशू सिक्योर्ड डिबेंचर. वो हम डिबेंचर टाइप में डिटेल में देखने वाले हैं. सो यहाँ पे ट्रस्टीज के थ्रू
ट्रस्ट डीड बनाया जाएगा, कंपनी और ट्रस्टी जो रहते हैं उसके बीच में एक एग्रीमेंट किया जाएगा और उस एग्रीमेंट को बोला जाएगा ट्रस्ट डीड. लक्षात ठेवून द्या, ट्रस्टी आणि कंपनी यांच्यामध्ये जे एग्रीमेंट तयार केलं जातं त्याला म्हटलं जातं ट्रस्ट डीड. आणि हे कधी करावं लागतं? जर तुम्ही डिबेंचर किती लोकांना देणार असाल, मोर दॅन 500 लोकांना जर देणार असाल तर हे एग्रीमेंट तुम्हाला करावं लागेल. Third is debenture holders. These are the parties who provide loan and receive debenture certificate as an evidence. And third important party is debenture holders. Debenture holders are those who purchases debentures of the company. So when they purchase debentures of the company, it means they provide loan to the company. And in return, company gives them debenture certificate as a evidence of loan, evidence of debt. तो डिबेंचर होल्डर म्हणजे अशी लोक जी लोक कंपनीचे डिबेंचर काय करतात? परचेस करतात. डिबेंचर परचेस करतात म्हणजेच काय करतात? कंपनीला लोन देतात. आणि जेव्हा ते कंपनीला लोन देतात, कंपनी त्याच्या बदल्यामध्ये एक डॉक्युमेंट देतं, त्याला म्हटलं जातं डिबेंचर सर्टिफिकेट. और वही डॉक्यूमेंट उनके लिए क्या रहता है? एक एविडेंस रहता है, प्रूफ रहता है कि हम लोगों ने कंपनी को क्या दिया है? कर्जा दिया है. So in this way there are three parties related to debenture. First is company. ये कंपनी रहेगा पहला, कंपनी जो पैसा बोरो करती है. ट्रस्टीज, अगर 500 से ज्यादा लोग हैं तो ट्रस्टीज अपॉइंट किए जाएंगे. और लास्ट वन इज डिबेंचर होल्डर, दोज हु प्रोवाइड लोन टू दी कंपनी. लक्षात ठेवून द्या, तीन पार्टीज असेल. कंपनी जी कर्ज घेते, ट्रस्टीज 500 पेक्षा जास्त लोक असतील तर आपल्याला ट्रस्टीज अपॉइंट करावे लागतील, आणि डिबेंचर होल्डर म्हणजे अशी लोक जी कंपनीला कर्ज देते. नेक्स्ट इज ऑथॉरिटीज टू इश्यू डिबेंचर्स. इट मीन्स हु कॅन इश्यू डिबेंचर, म्हणजे डिबेंचर कोण इश्यू करू शकतं. अकॉर्डिंग टू कंपनी ऍक्ट 2013 सेक्शन 179(3), the board of directors has the power to issue debentures. It means as per Company Act 2013, board of directors have right to issue debentures to public. मतलब डिबेंचर इश्यू करने का अधिकार किसको दिया गया है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को दिया गया है. नेक्स्ट वन, स्टेटस ऑफ डिबेंचर होल्डर्स. डिबेंचर होल्डर इज अ क्रेडिटर ऑफ द कंपनी. Debenture holders are to be considered as a creditor of the company. Debenture holder ला काय समजलं जातं? Creditor of the company समजलं जातं. Since debenture is a loan taken by a company, interest is payable on it at a fixed rate at a fixed interval until the debenture is redeemed. See, debenture holders are to be considered as a creditor of the company. They are considered as a creditor because they provide loan to the company, and that amount is to be repaid within specific time period. And not only the amount, they are also entitled to get interest on that amount, and interest is to be paid at a fixed rate, and that is to be paid regularly until debenture is get redeemed. मतलब जब तक डिबेंचर, आपको एक तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा इनके ऊपर, और इंटरेस्ट भी कैसा देना पड़ेगा? फीस देना पड़ेगा. मतलब चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, आपको इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा. कब तक इंटरेस्ट देना पड़ेगा? जब तक डिबेंचर रिडीम नहीं होते तब तक. रिडीम नहीं होते मतलब जब तक आप डिबेंचर होल्डर का प्रिंसिपल अमाउंट पूरा वापिस नहीं करते तब तक आपको इंटरेस्ट देते रहना पड़ेगा. और इसीलिए उन्हें कहा जाता है क्रेडिटर. क्रेडिटर का मतलब होता है जिनको पैसा देना है उसे बोला जाता है क्रेडिटर. ज्या लोकांना पैसे द्यायचे आहेत त्याला म्हटलं जातं क्रेडिटर. अ पर्सन टू हुम मनी इज पेएबल कॉल्ड एज अ क्रेडिटर, म्हणजे त्यांना आपण म्हणतो क्रेडिटर. मग डिबेंचर होल्डरला आपण जेवढे काही पैसे त्यांच्याकडनं घेतलेले आहेत ते आपल्याला परत करावे लागतात. एका स्पेसिफिक टाइम पिरियड पर्यंत आपल्याला ते परत करायचे असतात, आणि त्याच्यावर आपल्याला काय पेड करावं लागतं? इंटरेस्ट. आणि तेही कसं असतं?
फिक्स असतं, म्हणजे प्रॉफिट झालं तरी तुम्हाला तेवढंच द्यायचं आहे, लॉस झालं तरी तेवढं इंटरेस्ट तुम्हाला द्यायचंच आहे. आणि म्हणून डिबेंचर होल्डरला काय म्हटलं जातं? क्रेडिटर म्हटलं जातं. नेक्स्ट इज नो वोटिंग राईट. According to Section 71(2) of Company Act 2013, no company shall issue any debentures carrying any voting right. It means debenture holder does not get voting rights. They are not entitled to vote in a meeting of the company. डिबेंचर होल्डरला वोटिंगचा अधिकार मिळत नाही. डिबेंचर होल्डर हैव नो राइट टू वोट एट जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी. डिबेंचर होल्डर को कंपनी का जितना भी जनरल मीटिंग होता है, उस मीटिंग में डिबेंचर होल्डर को वोटिंग का अधिकार मिलेगा नहीं. हम लोगों ने देखा है वोटिंग का नॉर्मली अधिकार किसको दिया जाता है? इक्विटी शेयर होल्डर को दिया जाता है. एंड इक्विटी शेयर होल्डर्स आर कंसिडर एज अ ओनर्स ऑफ द कंपनी. सो डिबेंचर होल्डर डज नॉट गेट वोटिंग राइट. त्यांना वोटिंगचा अधिकार दिला जात नाही. Next is security. Debentures are generally secured by a fixed or floating charge on assets of the company. So when company issues debenture, at that time they create charge on assets through trust deed. If a company is not in position to make payment of interest or repayment of capital, the debenture holder can sell off charged property of the company and recover their money. देखो, सिक्योरिटी. जनरली ऑल डिबेंचर्स इशूड इन इंडिया आर सिक्योर डिबेंचर. इंडिया में जितने भी डिबेंचर इशू किए जाते हैं वो कौन से रहते हैं? सिक्योर्ड. इसका मतलब क्या हुआ? जैसे मैंने पहले भी कहा कि अगर मेरे कंपनी को 50 लाख के डिबेंचर बेचने हैं तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मेरा 50 लाख का असेट एक मॉर्गेज मतलब उसके ऊपर चार्ज तैयार करना पड़ेगा. चार्ज तैयार करना मतलब हम एक डीड तैयार करेंगे, एग्रीमेंट तैयार करेंगे, उसे बोला जाएगा ट्रस्ट डीड, जो हम लोगों ने अभी देखा ट्रस्टीज के थ्रू. तो ट्रस्टीज के थ्रू हम एग्रीमेंट तैयार करेंगे, ट्रस्ट डीड, और उस एग्रीमेंट में लिखा जाएगा कि हमारी कंपनी 50 लाख के जो असेट्स है वो उसके ऊपर चार्ज तैयार करती है या वो गिरवी रखते. कब तक गिरवी रखते हैं? जब तक हम डिबेंचर होल्डर का पूरा पैसा वापस नहीं करते तब तक. अभी क्या होगा? ये डिबेंचर सिक्योर्ड हो जाएंगे. मतलब कैसे? अगर कंपनी 50 लाख के डिबेंचर बेचती है, कंपनी के 50 लाख के जो असेट है वो गिरवी रखे गए ट्रस्ट डीड के थ्रू. अगर किसी कारण कंपनी ने डिबेंचर होल्डर का इंटरेस्ट नहीं दिया या डिबेंचर होल्डर का प्रिंसिपल अमाउंट वापिस नहीं किया, तो डिबेंचर होल्डर क्या कर सकते हैं? जो भी असेट गिरवी रखे हैं ट्रस्ट डीड के थ्रू जिसके ऊपर चार्ज तैयार किया गया है, वो सारे असेट बेच के अपना पैसा वसूल कर सकते हैं. मतलब यहाँ पे डिबेंचर होल्डर को सिक्योरिटी रहती है, सिक्योरिटी ऑफ पेमेंट. उनको खतरा नहीं है, पैसा दिया है, इंटरेस्ट और उनका कैपिटल प्रिंसिपल अमाउंट मिलने ही वाला है. क्योंकि अगर नहीं मिला तो जितने भी असेट जिसके ऊपर चार्ज रखा है सारे असेट बेच के अपना पैसा वो वसूल कर सकते हैं. इसीलिए उनके लिए क्या है? ये सिक्युरिटी है. आलं लक्षात? म्हणजे डिबेंचरवर काय तयार केलं? असेट्सवर काय तयार केलं जातं? चार्ज तयार केलं जातं. तेवढे असेट्स गहाण ठेवले जातात. गहाण ठेवण्यासाठी ट्रस्ट डीडचा वापर केला जातो, ट्रस्ट एग्रीमेंटचा वापर केला जातो आणि त्याच्या थ्रू सर्व असेट्सवर किंवा त्या लिमिटेड असेट्सवर चार्ज तयार केला जातो. आणि जर कंपनीने पैसे दिले नाही, इंटरेस्टचे पैसे दिले नाही किंवा प्रिन्सिपलचे पैसे दिले नाही, प्रिन्सिपल अमाउंट दिली नाही, तर डिबेंचर होल्डर कंपनीचे जे असेट्स ज्याच्यावर चार्ज तयार केलेला आहे ते असेट्स विकून आपले पैसे काय करू शकतात? वसूल करू शकतात. नेक्स्ट इज इश्युअर्स. Debentures can be issued by both private company and public limited company. Any company, any joint stock company, either private or public, can issue debenture. कोणतीही कंपनी, मग ती प्रायव्हेट कंपनी असून द्या किंवा पब्लिक लिमिटेड कंपनी असून द्या, ती कंपनी डिबेंचर इश्यू करू शकते.
Listing. Debenture must be listed with at least one recognized stock exchange. Listing means registration. तो अगर आपको डिबेंचर बेचने हैं, इशू करने हैं, तो आपको आपके डिबेंचर किसी भी भारत के किसी भी एक रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर करने पड़ेंगे, उसे बोला जाता है लिस्टिंग. एंड लास्ट वन इज transferability. Debentures can be easily transferred through the instrument of transfer. Transfer means to sell to another person. One debenture holder can sell their debentures to other person by using instrument of transfer. मतलब अगर एक डिबेंचर होल्डर को अपने डिबेंचर किसी दूसरे पर्सन को बेचने हैं तो वो बेच सकता है. वो बेचने के लिए उसको सिर्फ इन्स्ट्रुमेंट ऑफ ट्रान्सफर का इस्तेमाल करना पडेगा. म्हणजे एक डिबेंचर होल्डर आपले डिबेंचर दुसऱ्या व्यक्तीला विकू शकतो, त्याला म्हटलं जातं ट्रान्सफरेबिलिटी. सो ऑल दीज आर फीचर्स ऑफ डिबेंचर्स. रिमेंबर, डिबेंचर इज नथिंग बट acknowledgement of debt issued by company under its common seal, and debenture is a main source of borrowed capital.